Good morning everyone and welcome to the class. We are doing some question answers from chapter The End of Bipolarity, and today we will be discussing the questions from this chapter. One of the most important question is who was Boris Yeltsin? Boris Yeltsin was appointed by Mikhail Gorbachev as the head of the Communist Party in Moscow, and then we see that Boris Yeltsin becomes the president of Russia. He leaves the membership of Communist Party, and when Russia declares its independence from the Soviet Union, after that elections were held and Boris Yeltsin becomes the president of Russia. So, who was Boris Yeltsin? Boris Yeltsin was appointed by Mikhail Gorbachev as the head of the Communist Party in Moscow. And then when in June 1990 Russia declares Russia declares its independence from USSR, he becomes the president of Russia. Okay. And one more thing is about this is for your information only. You don't need to write all these things. Boris Yeltsin, he played a very important role when the Communist Party hardliner staged a coup against Gorbachev. In order to suppress that coup, in order to make that coup failure, this Boris Yeltsin played a very prominent role, and he became the hero in that process. Okay, so this is about Boris Yeltsin. And now we see that there are another questions, like one of the question is name the Baltic Republics. जो Baltic Republics थे USSR के, उनका नाम आपको पूछा जा सकता है. ये बहुत important question है.
Name the Baltic republics. Which are the Baltic republics? Those countries of those republics of USSR which were bordering the eastern part of the Europe, and the name of these countries are Lithuania, Latvia and Estonia. Okay, and one more thing is associated with these countries, because we see that the first independence movement begins in Lithuania and later it spread to Latvia and Estonia. तो पहला जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाल्टिक रिपब्लिक में स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इन लिथुआनिया. ओके, उसके बाद वो लातविया और एस्टोनिया में स्प्रेड करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, now like when the three Baltic republics of Estonia, Latvia and Lithuania became the members of UNO. कब वो UNO के मेंबर बनते हैं? ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है. When the countries of Baltic republics become the member of NATO. कब वो नेटो के मेंबर बनते हैं? नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेस्टर्न अलायंस था, जो कि इन्हीं कंट्रीज के अगेंस्ट बना हुआ एक अलायंस था. लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि यही कंट्री जिनके अगेंस्ट नाटो बना, तो वही कंट्री उसको ज्वाइन करते हैं. कब ज्वाइन करते हैं? दे ज्वाइन इन मार्च 2004. मार्च 2004 में वो बाल्टिक रिपब्लिक के जो कंट्रीज होते हैं वो ज्वाइन करते हैं नाटो को. ठीक है. देन देयर कैन बी अनदर क्वेश्चन लाइक व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू annul the treaty of 1922 and which were the countries who announced this. है ना, कौन सी कंट्री ने इसको अनाउंस किया और कब अनाउंस किया गया? It was announced in December 1991 that the Treaty of 1922 is annulled, and it was announced by Russia, Belarus and Ukraine. Okay, these are the three countries which decided to annul the Treaty of 1922. So the question is, name the countries
which decided to annul the Treaty of 1922. When was it decided? कब ये डिसाइड किया गया? तो जो कंट्रीज जिन्होंने ये अनाउंस किया था वो कौन थे? रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस. Yes, Russia, Ukraine and Belarus decided in December 1991. To annul the Treaty of 1922. Here you must be knowing कि ये ट्रीटी क्या थी. 1922 की जो ट्रीटी थी वो क्या थी? 1922 के ट्रीटी से ही यूएसएसआर का क्रिएशन हुआ था, है ना. 1922 की ट्रीटी से ही यूएसएसआर वाज क्रिएटेड, तो उसको ही अनल कर दिया गया. इसी में एक और क्वेश्चन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज बर्लिन वॉल फेल, है ना. कब बर्लिन वॉल कब गिरता है? तो ये कब गिरा था बर्लिन वॉल? इट वाज इन नवंबर 1989. ठीक है. अब एक बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग पहले भी जब हम चैप्टर व्हेन वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट क्वेश्चन. कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. व्हाट वर द What were the causes of disintegration of USSR? इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो सिर्फ मैं पॉइंट्स लिखूंगी. There are some economic reasons. इकोनॉमिक रीजंस में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूएसएसआर पर. प्रेशर था compete करने का, आर्म्स रेस में इक्वेट करने का यूएस के साथ. प्रेशर था अपने सैटेलाइट कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देने का. प्रेशर था जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज थे उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का. तो इन सब कारणों से इकोनॉमी पे प्रेशर था. एंड ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी. कहीं से भी न तो बाहर से सामान का आना जाना, न कैपिटल का आना जाना, न टेक्नोलॉजी का आना जाना. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड दिस वाज कॉजिंग
the economy to grow at a very slow rate, है ना। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं इकोनॉमिक रीजंस में पहला इकोनॉमिक प्रेशर था, और इस प्रेशर का रीजन क्या था। इस प्रेशर का रीजन 3 रीजन था, जिसको कि हमने अभी कहा। एक तो आर्म्स रेस था अमेरिका के साथ, दूसरा सैटेलाइट जो कंट्रीज थे उनको हेल्प देना फाइनेंशियल, है ना, और तीसरा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उनको हेल्प करना। इनकी वजह से प्रेशर था। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे इकोनॉमिक रीजन में वो ये कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई थी। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर स्टैग्नेशन? बिकॉज ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। कहीं से भी कुछ भी आने जाने का नहीं था, बिल्कुल ही क्लोज्ड इकोनॉमी था। टेक्नोलॉजी का जो भी एडवांसमेंट हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज में, the countries of USSR were, the Republic of USSR were not aware of all those changes। तो ये एक रीजन बना। तो ये इकोनॉमिक रीजन हुआ, है ना। इसके बाद हम लोग हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन में एक ही रीजन है और वो है सिंगल पार्टी सिस्टम का होना। एंड बिकॉज ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम द गवर्नमेंट वाज टोटली अनअकाउंटेबल एंड इट वाज बिकमिंग अथॉरिटेटिव। ओके, सो दैट वाज द ओनली पॉलिटिकल रीजन, जिसके कारण पॉलिटिकल स्टैग्नेशन आ गया था। पॉलिटिक्स में भी अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावे और भी रीजन है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में हम ये देखेंगे कि सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि स्टेट पावरफुल होता है, और स्टेट के पावरफुल होने से क्या होता है कि स्टेट के इस पावर को एक्चुअली यूज करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पावर को यूज करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हो रहा था यूएसएसआर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्लास था यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बहुत पावरफुल बन गए थे, एंड दे हैव स्टार्टेड टू मिसयूज देयर पावर। करप्शन बहुत हाई लेवल का हो गया था, ब्राइबरी चलती थी। तो इन सब से कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावे और भी रीजंस है, जैसे कि रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव। गोर्बाचेव की जो रिफॉर्म्स थे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो उन्होंने अपने संबंध को सुधारना चाहा, उसके कारण रिफॉर्म्स ने एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया, है ना, और ये एक रीजन बना। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो कि हमने देखा है कि सबसे पहले लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे कंट्रीज में आया, उसके बाद जॉर्जिया, रसिया जैसे कंट्रीज भी अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे डिसइंटीग्रेशन के क्या रिजल्ट हुआ, तो रिजल्ट हम लोग इसको भी डिस्कस किए हुए हैं, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। पहला तो यही होगा कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर, सेकेंड हो जाएगा, कोल्ड वॉर तो एंड होगा ही जब दो सुपर पावर्स थे, दो में से एक ही बच गया, तो ऑब्वियसली जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो टेंशन था, जो कंपटीशन था, दैट विल बी एंडेड एंड विद दिस कोल्ड वॉर आल्सो एंडेड, है ना। सेकेंड हो जाएगा कि द वर्ल्ड टर्न्स यूनिपोलर, जो अभी तक बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर हो जाता है, जहां पर कि हम देखते हैं कि अमेरिका का हेजेमनी स्टैब्लिश हो जाता है। थर्ड जो कंसिक्वेंस है डिसइंटीग्रेशन का वो है इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे न्यू कंट्रीज का इमर्जेंस होता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि यूएन में मेंबरशिप बढ़ जाती है, नेटो की मेंबरशिप बढ़ जाती है, ईयू की भी मेंबरशिप बढ़ जाती है। तो दीज आर द consequences। और इसी के साथ एक और वन मोर consequences there and that is number 4 and that is shock therapy, है ना, कि शॉक थेरेपी के जो किया गया, जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कैपिटलिज्म, फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, दैट ट्रांजिशन वाज आल्सो वन ऑफ द कंसिक्वेंस, है ना। तो ये सारे हमारे कंसिक्वेंस है। अब जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बोर्ड्स में, वो है कि डिफाइन शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी को डिफाइन करिए। Okay, the question is शॉक थेरेपी को डिफाइन करिए। सो शॉक थेरेपी वाज अ मॉडल ऑफ painful transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system, which was adopted in Russia, Central Asia, and East Europe countries. And this painful process of transition was influenced by the World Bank and the IMF, and this came to be known as shock therapy. Okay, so shock therapy was
Shock therapy was a model of painful transition. Shock therapy was a model of painful transition from an authoritarian socialist system to a capitalist democratic system. Which was adopted in the countries of in the independent countries of erstwhile in the independent countries of erstwhile USSR and Soviet bloc. This process was influenced by the World Bank and the IMF. Influenced by the World Bank and IMF. Okay, so this is your answer. And now there can be another question like what do you mean by ये तो एक नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इतना देना होगा, या 2 नंबर में भी, अगर 2 नंबर में आता है तो कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लूंगी, अदरवाइज ये 1 नंबर के लिए इतना आपका सफिशिएंट है. शॉक थेरेपी वाज अ मॉडल ऑफ पेनफुल ट्रांजिशन from an authoritarian socialist system to a capitalist democratic system which was adopted in the independent countries of erstwhile USSR and Soviet bloc. This process was influenced by the World Bank and International Monetary Fund. This is suitable for 1 mark question, है ना. This answer is suitable for 1 mark question. अब यही question 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको फिर हमको एक्सप्लेन करना होगा. उसमें डिफाइन नहीं आएगा, उसमें आएगा व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, एक्सप्लेन, है ना. तो उस तरह के क्वेश्चन में हमको इसको एक्सप्लेन करते हुए कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर लूंगी. पहले तो यही देना होगा उसमें भी आपको, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन है what do you mean by shock therapy, explain, तो वही चीज देना होगा जो कि अभी आपने दिया है ये वाला. इसके बाद आगे कुछ और ऐड करना होगा. लाइक इसमें आपको ये बताना होगा कि शॉक थेरेपी के अंदर क्या क्या चीजें हुई, है ना. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुआ शॉक थेरेपी के अंदर, वो क्या हुआ. आफ्टर डिफाइनिंग इट यू विल हैव टू गिव कि प्राइवेटाइजेशन हुआ. किस चीज का? एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन of agriculture, of industry. Okay,
पहली चीज ये होती है जिसमें कि हम देखते हैं जो ओनरशिप था वो चेंज हो जाता है ना। दूसरा जो शॉक थेरेपी के अंदर चेंज आया वो ये आया कि फ्री ट्रेड को अडॉप्ट किया गया। जो अभी तक ट्रेडिंग पे इतने सारे बंदिशें लगी हुई थी वो सारे खत्म हो गए, जो ऑब्स्ट्रक्शन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, है ना। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि तीसरी चीज जो इसके साथ हुआ वो ये हुआ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वेस्ट। तो ये दीज आर द, इसको आपको एक्सप्लेन में यही तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा। ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।